கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, வாரம் ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக திரும்பவுமாக இந்த வாரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்கள் யாவருக்கும் கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த தின நல்வாழ்த்துக்களை வாரம் ஒரு சாட்சி குழுவின் சார்பாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பாருங்கள், பலவிதமான சாட்சிகள் நம்ம தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம். இன்றைக்கு ஒரு பாஸ்டருடைய சாட்சி நாம் கேட்க போகிறோம். சாட்சி ஹிந்தியில் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நான் உங்களுக்கு தமிழில் விவரமாக சொல்லுவேன். கடைசி வரை நீங்கள் பாருங்கள், கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறவர் பாஸ்டர் வினோத் தாப்பால். இவருடைய மனைவியின் பெயர் சிஸ்டர் சரிகா தாப்பால். இவர்களுக்கு 2 பிள்ளைகள். மூத்த மகளின் பெயர் வேதிகா தாப்பால். இவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் BA படித்து கொண்டு வருகிறார். அடுத்த மகனின் பெயர் ஆதி தாப்பால். இவர் 3வது வகுப்பிலே படித்து கொண்டிருக்கிறார். இவர்கள் மகாராஷ்டிராவிலே மும்பையிலே போரிவில்லி ஈஸ்ட் ராஜேந்திர நகர் என்ற இடத்திலே குடும்பத்தோடு வசித்து வருகிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, ஜியோன் சர்ச் என்ற பெயரிலே ஆண்டவருடைய பணியையும் ஆலயத்திலே வைத்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். ஆண்டவருடைய பணியையும் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். எங்கே நாம் சாட்சியை கேட்கலாமா? சாட்சியை பாருங்க. அதாவது இவர் ஒரு பரம்பரை இந்து குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு சகோதரர். ஆனால் சிறு வயதிலேயே கிறிஸ்தவர்களை அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அது மாத்திரமல்ல, ஒரு சர்ச்சுக்கு வெளியே ஒரு வார்த்தை எழுதியிருந்தாங்களாம். அதாவது, பிதாவே இவர்களை மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே. அதை வாசித்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் அவருக்கு இந்த கிறிஸ்தவ மதத்தின் மீது அதிக பற்றுதல் உண்டாம். ஆனால் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? இவர் வளர்ந்து கொண்டு வருகிறார். இவருடைய தகப்பனார் குடிக்கு அடிமையானவர். தினந்தோறும் குடிப்பாராம், வீட்டில் சண்டை போடுவாராம். அது மாத்திரமல்ல, குடும்பத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை. பாருங்கள், பெற்றோருடைய பழக்கங்கள் எப்படியும் பிள்ளைகளுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதை மாதிரி தாங்க இவர் கூட வாலிப வயதில் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறார், புகைக்க ஆரம்பிக்கிறார், அடித்தடியில் இறங்கிடுறாரு. வாழ்க்கை வித்தியாசமான ஒரு பாதையில் போய்கொண்டிருக்கிறது. பாவத்திற்கு மேல் பாவம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார். அதே பாவ சூழ்நிலையில் தான் அவருக்கு திருமணமும் நடக்கிறது. ஆனால் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்கள், அவருடைய மனைவி ஆண்டவரை அறிந்து கொள்கிறார். ஆனால் பாருங்கள், பாஸ்டருக்கு இப்போவும் பெருசு எதுன்னு பார்த்தா பணம் தாங்க. உண்மை அதுதானே, பணம் 10 செய்யும், பணம் பாதாளம் வர பாயும். அப்போ அவருக்கு குறிக்கோள் எல்லாம் பணம் தான் கடவுள். அப்போ அதனால் அவர் என்ன செய்யலை, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், ஒரு 7 நாள் முகாமுக்கு அவர் போகிறார். அங்கேயும் கூட ஜெபத்தில் இடையிடையே அவர் வெளியே போயிட்டு ஸ்மோக் பண்ணிட்டு வந்துடுவாராம். ஆனால் ஒரு நாள் அவங்க கேட்குறாங்க, யாரெல்லாம் ஆண்டுடைய ஊழியத்தை நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்ட்டு. தன்னை அறியாமலே இவர் கைகளை உயர்த்துகிறார். நான் ஆண்டுடைய ஊழியத்தை செய்ய போகிறேன்னு சொல்லி அந்த முகாமில் அவர் சொல்கிறார். ஆனால் அதுக்கப்புறமும் ஊழியத்தை செய்யலை. ஆனால் ஊழியத்தை கவனித்து கொண்டு வருகிறார். அப்போ பாருங்கள், இந்த சாட்சியெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, அப்போ இவர் மனசில் நினைப்பாராம், இவங்க எல்லாம் சொல்லி வச்சுக்கிட்டு வராங்க, அப்படியே எதை சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதே இவங்க சாட்சியாக சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க, மத மாற்றம் பண்ணுறாங்க. இப்படி தவறான பல சிந்தனைகளை கிறிஸ்தவ மதத்தை பற்றி கொண்டிருந்தார். ஆனால் பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆண்டவரை அறிந்து கொள்கிறார். ஆண்டவரை அறிந்து கொண்ட பிறகு ஒரு நாள் அவருக்குள்ளாக ஒரு அனுபவம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், பரிசுத்த ஆவி அவரை தொடுகிறது. தொட்ட மாத்திரத்தில் அவருடைய அந்த பாவ பாரமெல்லாம் அப்படியே இறங்கி போன மாதிரி மிகவும் லகுவாக அவர் ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறாருங்க. அதை தான் அவர் சாட்சியில் சொல்லியிருக்கிறாரு. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம். அதுக்கப்புறம் பாருங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள். 2012 பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரை தொடுகிறார். 2013 அவர் வேதாகம கல்லூரியிலே பயில்கிறார். 2014வது வருடம் சுயமாக ஒரு சபையை ஆரம்பித்து ஊழியம் செய்கிறார். நடந்த அற்புதம் என்ன தெரியுமா? அவருக்கும் அவருடைய மகளுக்கும் ஆஸ்துமா வியாதி இருந்திருக்கிறது. அது பாருங்கள், காணாமல் போயிட்டு. முதல்ல என்ன நினச்சார், அவர் சொல்லி கொடுத்து சாட்சி சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி அவரே அதை சாட்சியாக நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். என்ன ஒரு அற்புதம் பார்த்தீங்களா? அதுக்கப்புறம் சொல்லியிருக்கிறாரு, அப்பா குடிப்பாங்க, சித்தப்பா குடிப்பாங்க, குடும்பமே குடிக்கும், நானும் அந்த குடிப்பழக்கத்தில் இருந்தேன், பாவ பழக்கத்தில் இருந்தேன், பாவ பாரத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிற ஒரே தெய்வம் இயேசுவானவர் என்று அவர் சாட்சி கொடுத்திருக்கிறார். प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं पास्टर विनोद, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया। मेरे जीवन की गवाही आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ, इन्हें बांटना चाहता हूँ। तो शुरुआती से लेके मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। मेरा जो जन्म हुआ वो मराठी बैकग्राउंड में हुआ और
बचपन से ही मुझे एक ही चीज़ पता थी कि कोई तो एक परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया है। वो परमेश्वर कौन है मुझे पता नहीं था। मैं चर्च में, जब चर्च के बाहर जैसे पोईसर में एक चर्च है, वहाँ पर दिखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये लोग अच्छे लोग हैं ऐसा करके। एक ही बात मुझे पता थी कि किसने तो एक जगह पर ऐसा लिखा है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये बात मुझे पता थी। मैं 10th में फेल हो चुका हूँ क्योंकि मेरे घर का बैकग्राउंड सही नहीं था। मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे और हमेशा रात भर झगड़ा होते रहता था। तो हम लोग 4 भाई बहन थे, 2 भाई 2 बहन, सबसे बड़ा मैं था। तो बहुत प्रेशर होता था कि क्या लाइफ है, कैसे। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपना जीवन क्या जी रहा हूँ, क्या मेरा लाइफ है। ऐसा धीरे धीरे करते करते मैं जब बड़ा होते गया तो दुनिया में बहते गया। पहले सिगरेट पीना सीखा, शराब पीना सीखा, फिर उसका जुआ खेलना सीखा, मारपीट करना शुरू किया। कभी कभी रात को 12-1 बजे घर जाता था, कभी कभी घर पर भी नहीं जाता था। तो ऐसा मेरा लाइफ था। तो उसी के बीच में मैं पापों में बहुत धंसते गया। मुझे ये पता था कि अगर मैं मरूंगा तो मुझे नरक मिलूंगा, क्योंकि मैंने इतने सारे पाप किए थे। कुछ पाप ऐसे थे कि जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और कोई भी नहीं जानता। तो मेरा लाइफ बहुत डिस्टर्ब था। मुझे समझ में नहीं आता था और मेरे लाइफ में ब्लेसिंग ही नहीं था। कोई भी 1 साल के ऊपर मैंने काम किया ही नहीं। तो ऐसे में मैं अपना लाइफ सिर्फ जीवन जी रहा था। उसी के बीच में मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद भी लाइफ वही थी, काम नहीं, कुछ नहीं, जो मिला वो काम कर लिया और शराब पीना, सिगरेट पीना, बस यही ऐसा सब चल रहा था। तो उसी के बीच में मेरी वाइफ को पीठ का प्रॉब्लम था। तो वो लोग वसे में प्रार्थना केंद्र है, वहाँ पर गए तो उसका पीठ का दर्द चला गया। फिर उसके बाद उसके लाइफ में इशू नहीं था। वो कभी कभार वो लोग जाते थे और आते थे। तो एक बार 2011 में मेरे फ्रेंड है, उसके यहाँ पर एक पास्टर आए, तो उनके घर पे सुसमाचार सुनाने लगे। तो घर वाले ने कहा कि मेरे एक पहचान में है, वो लोग प्रेयर में कभी कभी जाते। तो मेरा वाइफ जस्ट रोड से जा रहा था तो उनको बुलाया, वो पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना किया, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में वो जाने लगे, उसने यीशु को ग्रहण किया पूरा और प्रार्थना अटेंड करने लगे। तो मुझे कहा बहुत बार कि आप भी आइए। मैंने उनको कहा मैं तुझे जाने दे रहा हूँ, तू जा रही है तो मुझे नहीं आना है, मुझे बुलाना भी मत। क्योंकि मेरा ऐसा था कि मुझे सिर्फ एक ही परमेश्वर पता था, वो है पैसा। पैसे के बिना कोई परमेश्वर है नहीं। तो ऐसे समय बीतता गया। मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो ऐसे में 2011 अक्टूबर महीने में मैं एक बार प्रार्थना में गया। तो वहाँ जाने के चलते वहाँ पर मुझे पता चला कि परमेश्वर के सामर्थ्य से मेरे अंदर कुछ दुष्ट आत्मा कार्य करती है, जो मुझे रोकती है आगे बढ़ने को ब्लेसिंग से। तो लेकिन जैसा मैं वहाँ 7 दिन रहा, जैसा प्रार्थना खत्म होता था मैं बाहर जाता था, सिगरेट पीता था, कुछ बास नहीं आना चाहिए ऐसा करके फिर प्रेयर हाउस में आता था। यहाँ तक कि वो चर्च के ऊपर जो है टेरेस था, मैं वहाँ पर भी जाके सिगरेट पिया हूँ। ऐसा मेरा लाइफ था। लेकिन 2012 में एक प्रार्थना में ऐसा लास्ट में प्रार्थना में हुआ कि कौन यीशु की सेवकाई करेगा, और मैंने हाथ उठाया। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था क्योंकि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा था। और इसके पहला मैं जब प्रार्थना में गया था तो लोग ऐसा गवाही देते थे कि मुझे अच्छा किया, मुझे ये किया। तो मैंने सोचा कि ये लोग सब मिले हुए लोग हैं, कि ये लोग खुद से ही इनको बोला गया कि ऐसे ऐसे बोलना, ऐसा मैं सोचता था। और मुझे एक ऐसा दुनिया जैसा सोचती वैसे मैं सोचता था कि प्रार्थना में जाने के बाद ये लोग पैसा देते हैं और धर्म बदली करते हैं। तो जब मैं पवित्र आत्मा ने मुझे चुना 2012 1 तारीख, उस समय संडे था, लगभग 1:30 और 2 के बीच में। उस समय मैंने जाना कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और मैं उस समय अपने आप को है ना बहुत हल्का महसूस कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि
जीवन भर जितने मैंने पाप किए, उस पाप के बोझ को उठा के मैं चल रहा था, और उस बोझ को किसी ने उठा लिया और मैं इतना खुद को हल्का महसूस कर रहा था कि वो क्षण मेरे लाइफ में बहुत अद्भुत था। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ते गया, प्रार्थना करते गया, बाइबल पढ़ते गया, फिर परमेश्वर की सेवकाई करते गया। 2012 में मुझे परमेश्वर बोला कि तूने जो वायदा किया उसे पूरा कर, मेरा काम कर। तो मैंने बोला, मैं अगर परमेश्वर तेरा काम करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, काम क्या कर रहा है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया, जब तू शराब की बोतलें लेके घूमता था, खुले में पीता था, तब तुझे लोगों का टेंशन नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। मैंने सोचा, मैंने कहा परमेश्वर से बोल रहा है। 2012 में मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया, 2013 में बाइबल कॉलेज किया, 2014 में अलग से कलीसिया शुरू किया। लेकिन एक बात मैंने सीखा कि सृष्टिकर्ता जो है वही मुख्य है, और यीशु मसीह हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाता है, हमें सुनता है। तो मेरे प्रिय, एक बताना चाहता हूँ कि लोग जो बोझ को लेके चल रहे हैं, पाप को लेके चल रहे हैं, बहुत सारे लोग पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो शाप बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि मेरे दादाजी शिप में काम करते थे, मुकादम थे, शराब पीते थे, गुंडागर्दी करते थे। मेरे फैमिली जो उसके बाद थी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा लोग भी शराब पीते थे। उसके बाद मैं भी शराब पीने लगा, गुंडागर्दी करने लगा। तो ये जो फैमिली का जो शाप मेरे ऊपर भी था, लेकिन जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, शाप को तोड़ दिया। मुझे दमे की बीमारी थी, चली गई। मेरे लड़की जो, उसे भी वही बीमारी थी। लेकिन हम लोग जब प्रभु को पूरी तरीके से ग्रहण किया, हमें न सिर्फ पापों से बल्कि बीमारी से भी छुटकारा मिला, और परमेश्वर ने बहुत ब्लेसिंग दिया। तो एक जो बात थी, जो गलत बात जो मुझे बताई गई थी, या मैं सोचता था कि प्रार्थना में आने के बाद धर्म परिवर्तन होता है, पैसा मिलता है। मेरे प्रिय, ऐसा कुछ नहीं है। प्रार्थना में आने के बाद यीशु अपने मन को परिवर्तित करता है, और कलीसिया में जाने के बाद परमेश्वर हमें बहुत आशीष करता है। या पैसा मिलता नहीं है, परमेश्वर की आशीष प्राप्त होती है, और उसी आशीषों को हम कलीसिया में भेंट के रूप में देते हैं। तो कलीसिया में जाने पर पैसा मिलता नहीं है, पैसा वहाँ देना पड़ता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरे लाइफ को बदल के लगभग 12 साल हो चुके हैं, और वही परमेश्वर आपकी लाइफ को भी बदलना चाहता है। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा सभी को आशीष करें। எங்கே ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாமா? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 7। For God did not call us to be impure but to live a holy life. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் சொல்றத பாருங்க. தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார். வசனம் சொல்ல மாதிரி நாம அசுத்தத்தை களைந்து விட்டு பரிசுத்தமாக வாழ்வதற்கு முயற்சி செய்வோம். உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவானவர் விட்டு சென்ற ஊழியத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்ட அன்பு தேவ ஊழியரையும், அவரது மனைவியையும், குழந்தைகளையும், அவர் செய்து வருகின்ற ஊழியத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் யாவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். திரும்பவுமாக அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு புதிய சாட்சியுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமென்.